Good afternoon, all of you. In last lecture, we started the chapter First Aid. In that, we discussed the principle of first aid, that is, the maintenance of respiration, control of hemorrhage, prevention of shock, fourth, splinting of fractures, and fifth, careful evaluation of all morbid conditions. In that, the first principle is maintenance of respiration, in which we discuss the artificial respiration, chest pressure arm lift method, that is the Sylvester method. Then next, back pressure arm lift method, that is the Holger-Nessler method. Okay. Then students, we move the next part is a resuscitation. So what is meant by resuscitation? Resuscitation is the process of correcting physiological disorder such as a lack of breathing or heartbeat in an acutely ill patient, which means the victim's difficulty in breathing or respiration and also decrease the heart rate in such a patient or victims. The resuscitation method are used. The first aim of resuscitation method is to maintaining air exchange in the lungs through artificial respiration and restoring heart activity by method of resuscitation. रेसिसिटेशन मीन्स क्या होता है? ऐसे विक्टिम जो उनकी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन कम हो जाती है, ऐसे पेशेंट को हम रेसिसिटेशन मेथड प्रोवाइड करते हैं. इनमें क्या करते हैं हम? फर्स्ट एम क्या है रेसिसिटेशन का? इसमें एयर ब्लो करते हैं आर्टिफिशियली टू द लंग्स थ्रू आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड रिस्टोरिंग हार्ट एक्टिविटी बाय मेथड ऑफ रेसिसिटेशन. देन now we discuss the first method of resuscitation, in which two methods are involved. First is mouth to mouth resuscitation and second is cardiopulmonary resuscitation, that is the CPR. The first method we discuss, that is the mouth to mouth resuscitation. It is the effective method of introducing air into the victim's lungs if the victim has stopped breathing but still has a pulses. That means the introducing artificial air to the victim's lungs, but in such a victim which stop his breathing but still has a pulses, then we see the stepwise process of mouth to mouth resuscitation. The first step is place the victims on his back. Then second step is open his mouth and sweep or hook finger deep inside to remove any debris. फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बताया? जो विक्टिम है उसको प्लेस ऑन बैक करना है, बैक पर उसको प्लेस करना है. देन सेकंड स्टेप इज ओपन हिज माउथ एंड स्वीप और हुक फिंगर डीप इनसाइड टू रिमूव एनी डेब्रिज. विक्टिम के माउथ में कुछ डेब्रिज और डर्ट हो वो फिंगर से हमें निकालना है. देन थर्ड स्टेप इज होल्ड द बैक ऑफ नेक विथ वन हैंड. उसकी बैक वन हैंड से हमें होल्ड करना है. देन नेक्स्ट पिंच द नोस्ट्रिल, टेक डीप ब्रीथ, ओपन योर माउथ, सील इट ओवर हिज एंड ब्लो एयर. That is, the victim's nostrils are closed by one hand of first aider and take deep breath and blow air to the victim mouth. Then next step, his chest will rise as the air is forced into his lungs. Wait for the victim chest to fall, then repeat the process. क्या करना है हमें? आर्टिफिशियल एयर ब्लो की है विक्टिम के माउथ में, तो उसकी वजह से क्या होगा? आर्टिफिशियल एयर ब्लो करने की वजह से चेस्ट थोड़ा राइज होगा, विल बी स्लाइटली राइज एंड द विक्टिम्स चेस्ट टू फॉल होने तक, जो विक्टिम का चेस्ट है वो फॉल होने तक हमें वेट करना है. देन रिपीट करनी है वही प्रोसेस. देन कंटिन्यू माउथ टू माउथ रेसिसिटेशन स्टेडीली एट द रेट ऑफ 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट. हमें कंटिन्यू करनी है ये प्रोसेस. कब तक? 1 मिनट तक. और 1 मिनट में हमारा ब्रीथ कितना होना चाहिए? 12 to 20 ब्रीथ इन 1 मिनट. देन लास्ट स्टेप,
until the victim start breathing or until a medical team comes। कब तक हमें आर्टिफिशियल ब्रीथिंग उसको देना है, जब तक मेडिकल टीम वहाँ पर पहुँच नहीं जाती या फिर विक्टिम स्टार्ट ब्रीथिंग सेल्फली। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट मेथड माउथ टू माउथ रेसिसिटेशन। देन हमारी नेक्स्ट मेथड है कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन, दैट इज़ द CPR। C means cardio, P means pulmonary and R means resuscitation, in which the first step is carried out. First is place the one hand in the middle of victim chest। क्या करना है आपको, वन हैंड मिडल ऑफ द विक्टिम चेस्ट, विक्टिम के चेस्ट पर वन हैंड रखना है। देन कवर फर्स्ट हैंड विथ अदर हैंड, दैट इज़ अ लॉकिंग फिंगर। फर्स्ट हैंड हमें विक्टिम के चेस्ट पर रखना है, देन सेकंड हैंड से उसे कवर करना है, दैट इज़ अ लॉकिंग फिंगर। दिस टाइप ऑफ फिंगर, दैट इज़ अ लॉकिंग फिंगर। देन प्लेस द palm of left hand on it, then press chest bone down towards the spine for about 5 centimeter, held in this position for half a second and then release। क्या करना है हमें, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, प्लेस वन हैंड ऑन अ विक्टिम चेस्ट, देन सेकंड हैंड ऐसे रखना है जो हमारी फिंगर लॉक हो जाएगी हमारी फिंगर। देन उसके बाद पूरा हमें प्रेशर देना है, हमारी पाम से उसके चेस्ट बोन पर प्रेस करना है। देन प्रेस करने के बाद पिन जो है अबाउट 5 सेंटीमीटर डाउन टूवर्ड्स हो जाएगी। देन उसके बाद हाफ अ सेकंड वैसे ही पोजीशन रखनी है। देन अपने हैंड रिलीज करना है। देन लिफ्ट हैंड स्लाइटली आफ्टर ईच टू अलाउ चेस्ट टू रिकॉइल। देन रिपीट द साइकिल फॉर 60 to 70 टाइम्स अ मिनट। वही साइकिल हमें रिपीट करना है, कब तक, 60 to 70 टाइम्स पर मिनट। देन लास्ट step is perform again and again till the person gain respiration or medical help arrives। लास्ट स्टेप क्या है हमारी, परफॉर्म अगेन एंड अगेन। वही स्टेप हमें रिपीट करनी है जब तक वो खुद से ब्रीथ नहीं करता या फिर कोई मेडिकल टीम वहाँ पर मौजूद नहीं होती, तब तक हमें वही स्टेप रिपीट करनी है। ये हो गया हमारा कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। देन हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है कंट्रोल ऑफ हीमोरेज। देन हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है कंट्रोल ऑफ हीमोरेज। व्हाट इज मीन बाय हीमोरेज, which means the hemorrhage means excessive loss of blood from the blood vessel which may be cut or damaged accidentally or due to disease। which means क्या होता है, suppose if the victim or person which rupture the blood vessel accidentally or damagely cut the excessive loss of blood, this is called as the hemorrhage। Then we discuss the types of hemorrhage, in which the two types of hemorrhage, first is internal hemorrhage and second is external hemorrhage। First is internal hemorrhage। Internal hemorrhage means the loss of blood from the internal organs of body। For example, suppose example लेते brain hemorrhage। brain hemorrhage that is called as a cerebral hemorrhage, in which the ruptured blood vessel causes bleeding inside the brain। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल रप्चर होती है और ब्लड फ्लो होता है इनसाइड द ब्रेन, दैट इज़ द इंटरनल हीमोरेज। देन एक्सटर्नल हीमोरेज। एक्सटर्नल हीमोरेज मीन्स द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी, दैट इज़ द कट्स और वाउंड। जो हमारी स्किन पर कट्स होते हैं और वाउंड्स होते हैं वो एक्सटर्नल ब्लीड करता है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल हीमोरेज। देन internal hemorrhage are subdivided into two parts, that is the arterial bleeding and venous bleeding। First is arterial bleeding। Arterial bleeding means in which the blood escape from arteries at high pressure, and if bleeding is not arrested then the person may bleed to death in a few minutes, stream of bright red color। आर्ट्रियल हीमोरेज मीन्स क्या होता है, हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है,
और नॉट अरेस्टेड, यानी वो कोएगुलेट नहीं होता और ऐसे ही अगर ब्लड फ्लो हो जाए तो विद इन अ फ्यू मिनट्स में वो विक्टिम की डेथ हो जाती है। और आर्टेरियल ब्लीडिंग का, आर्टेरियल ब्लड कैसे होता है, ब्राइट रेड कलर का। देन सेकंड पार्ट इज वीनस ब्लीडिंग, सेकंड पार्ट इज वीनस ब्लीडिंग in which blood flow more slowly in a even stream and is dark cherry color. Venous bleed क्या होता है, blood flow more slowly as compared to arterial bleeding and which is the color of blood is dark cherry color. Then we discuss the methods can be used to stop external bleeding temporarily. एक्सटर्नल ब्लीडिंग हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं ये हम स्टेप वाइज देखेंगे। फर्स्ट स्टेप इज अप्लाई प्रेशर ऑन द पॉइंट ऑफ ब्लीडिंग। अगर आपको कुछ भी ब्लीड हो रहा है तो उस पर प्रेशर अप्लाई कीजिए। फर्स्ट स्टेप इज प्रेशर अप्लाइंग ऑन द पॉइंट ऑफ ब्लीडिंग। सेकंड स्टेप इज प्लेस ड्रेसिंग ओवर द वाउंड एंड टाई इट विथ बैंडेज with a bandage tightly. Then second, rise the area of bleeding above the level of heart. क्या करना है, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो क्या करना है, हार्ट के लेवल के ऊपर हमको अगर हैंड में अगर कुछ लगा, कट हुआ तो हार्ट के ऊपर, उसके हेड के ऊपर हमको हैंड ऊपर करना है। देन राइज द फुट एंड ऑफ बॉडी सो दैट द होल बॉडी इज टिल्ड विथ हेड लोअर दैन द फीट। क्या करना है, अगर फुट पर कुछ इंजरी हुई तो क्या करना है, फुट ऐसे राइज करना है यानी कि ब्लीडिंग थोड़ी तो भी स्टॉप हो जाए। देन फिफ्थ स्टेप, इट इज़ समटाइम्स पॉसिबल टू अरेस्ट ब्लीडिंग बाय कॉम्प्रेसिंग वेसल्स बाय बेंडिंग द लिम्ब एट द जॉइंट। देन सेकंड, profuse artificial bleeding from the limb required emergency measure which consists in applying a tourniquet. Tourniquet means a piece of cloth which applied to the wound. Tourniquet is applied about the wound and as near as possible to it. It should be tightened only enough to stop the bleeding. Tourniquet means क्या होता है, piece of cloth, वो ऐसे टाइट करना है वाउंड के ऊपर टू स्टॉप द ब्लीडिंग। देन टू टाई टॉर्निक्वेट कैन डैमेज द नर्व एंड कॉज अ पैरालिसिस ऑफ लिम्ब। इट शुड नॉट बी लेफ्ट इन अ पोजिशन मोर दैन एन हावर आफ्टर विच इट शुड बी कंटिन्यूसली लूजेंड टू रिस्टोर सर्कुलेशन। फर्स्टली क्या करना है, हमें जो वाउंड है वो क्या करना है, टॉर्निक्वेस्ट करना है। टॉर्निक्वेस्ट यानी क्या, पीस ऑफ क्लॉथ हमें वो वाउंड पर टाई करना है। टाई ऐसा करना है कि वो हमारा ब्लड स्टॉप कर पाए, पर इतना भी टाइटली टाई नहीं करना है कि हमारी कोई नर्व वो रप्चर हो जाए। देन वी लूजेन टू रिस्टोर सर्कुलेशन, हाफ एन हावरली हमें लूज़ करना है वो, देन सर्कुलेशन यानी कि हो पाए। Then last step is a victims with tourniquet must be taken to the hospital immediately. Tourniquet is tied on the arm or thigh where a single bone is present. विक्टिम्स को क्या करना है, जो टर्निक्वेस्ट हमने किया है विक्टिम के ऊपर वो सडनली हमें हॉस्पिटल में ले जाना है। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देंगे। देन लास्टली हमें क्या करना है, टॉर्निकेट ऐसी जगह पर टाई करना है जहाँ पर सिंगल बोन प्रेजेंट हो, दैट इज़ द आर्म और थाई। ये हो गया हमारा कंट्रोल ऑफ हीमोरेज। Good afternoon student. Next topic is shock. So what is meant by shock? Shock is a poor circulation of vital organs. Shock is a very serious and life threatening. The casualty may not know that they are in a shock. Means क्या होता है? It means a condition in which a circulation fails to meet the nutritional needs of the cells and at the same time fails to remove the metabolic waste product.
मीन्स इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन फेल्स टू मीट अ न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ सेल्स, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है उसमें न्यूट्रिशनल फेल्स होता है सर्कुलेशन करने में. देन वी डिस्कस द कॉजेज ऑफ शॉक. फर्स्ट कॉज इज डायलेट ब्लड वेसल. फर्स्ट कॉज इज डायलेट ब्लड वेसल. सेकंड ब्लीडिंग, सीवियर डिहाइड्रेशन, all leading to a drop in a blood pressure. Then next causes which result in a poor circulation. This can be caused by severe emotional trauma, physical injury or illness, etc. Then we discuss the symptoms and sign of the shock. First symptoms is unusual behavior. Unusual behavior, for example, very calm or very anxious. Then second symptom is lack of pain to an injury. Lack of pain, उसमें पेन कम होता है, जहाँ पर इंजरी हुई वहाँ पर पेन कम होता है. Then next symptoms is rapid breathing. ब्रीथिंग हमारी रेस्पिरेशन है वो रैपिड होती है, इंक्रीज हो जाती है. Then next symptoms is rapid but weak pulses. पल्सेस जो होती है रैपिड होती है पर वीक होती है, स्लो डाउन हो जाती है. Then bluish स्किन, हमारी जो स्किन की टोन है वो ब्लूइश कलर की हो जाती है. देन अनकॉन्शियस, लास्ट सिम्टम्स इज अनकॉन्शियस. देन वी डिस्कस द फर्स्ट डिग्री ऑफ इन शॉक. देयर इज अ 3 degrees ऑफ शॉक. फर्स्ट डिग्री, इट इज अ स्टेट ऑफ कंपनसेशन, पैलर, वीकनेस, पल्स रेट गो टू 100 सिस्टोलिक, BP 100 mm of Hg. फर्स्ट डिग्री है. फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, स्टेट ऑफ कंपनसेशन. इसमें BP जो हमारी होती है 100 mm of Hg की हो जाती है. देन नेक्स्ट सेकंड डिग्री. सेकंड डिग्री इज अ स्टेट ऑफ पार्शियल कंपनसेशन in which the pulse rate is 120 to 140, मैक्सिमम BP अराउंड 70 to 80 mm of Hg. इसमें क्या होता है, जो पल्स रेट होती है हमारी वो 120 to 140 की रेंज में बढ़ती है और जो BP है अराउंड 70 to 80 mm of Hg. एंड द वीकनेस, पैलर, एंजाइटी, कोल्ड स्वेट एंड ओकेजनल वोमिटिंग आर ऑकर इन द सेकंड डिग्री. Then the third degree, it is a state of compensation, mark weakness, pallor, cold, sweet, thirst, vomiting, etc. Then pulse rate इसमें जो होती है 120/160 मैक्सिमम एंड BP इज बिलो टू द 70 mm of Hg. इसमें थर्ड डिग्री में क्या होता है, पल्स रेट जो है हमारी वो 120 to 160 की रेंज में चली जाती है और जो BP है बिलो हो जाती है 70 mm of Hg. देन शॉक की ट्रीटमेंट. फर्स्ट पॉइंट इज कीप द विक्टिम क्विट एंड लाइंग डाउन. एनी ब्लीडिंग शुड बी अरेस्टेड. फर्स्ट स्टेप है हमारी, जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसको लाइंग डाउन करना है एंड जो ब्लीडिंग है शुड बी अरेस्टेड, यानी जो ब्लीड हो रहा है उसे स्टॉप करना है, टू कंट्रोल अ स्टॉप. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कीप हिम वार्म, कवर हिम टू कीप वार्म. नेक्स्ट पॉइंट इज क्या करना है, जो विक्टिम है उसको कवर करना है वार्म करने के लिए, या फिर कवर हिम टू कीप अ वार्म. इफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर नॉट डैमेज ही मे बी गिवन टू हॉट टी और कॉफ़ी. देन इंटरनल डैमेज, अगर इंटरनली कुछ डैमेज नहीं हुआ तो उसको हॉट टी या फिर कॉफ़ी प्रोवाइड करो. देन ओरल फ्लूइड शुड नॉट बी गिवन इफ अ पेशेंट इज अनकॉन्शियस. अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ तो उसको ओरल फ्लूइड नहीं देना है. और इज अ वोमिटिंग और इफ देयर इज अ एब्डोमिनल वाउंड. देन नेक्स्ट पॉइंट इज फियर कैन मेक शॉक वर्स, इनकरेज हिम. हमको अगर शॉक लगता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डर जाते, तो ये ना हो इसलिए हमें उसे इनकरेज करना चाहिए यानी कि वो शॉक में ना जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज लूजन टाइट क्लॉथिंग बट डू नॉट रिमूव इट. अगर उस विक्टिम ने या पेशेंट ने क्लॉथ टाइट पहना है तो वो लूज़ करना है बट नॉट रिमूव इट. देन नेक्स्ट पॉइंट राइज द लेग्स, प्रोवाइड वार्म कवर. क्या करना है, राइज करना है लेग्स को एंड प्रोवाइड अ वार्म कवर, बट डू नॉट यूज वाटर बॉटल और वेरी वार्म रग्स एंड आल्सो डू नॉट रब एनी पार्ट ऑफ बॉडी विथ एनीथिंग. आपको वार्म कवर करना है उसके लेग्स को, बट डू नॉट यूज वार्म वाटर.
वार्म वाटर यूज़ नहीं करना है या फिर उसकी बॉडी में कोई भी रब नहीं करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ ग्रेटर ब्लड लॉस द पेशेंट शुड बी शिफ्टेड In case of greater blood loss, the patient should be shifted to hospital for a blood transfusion. अगर उसका blood loss हुआ ज़्यादा तो उसको hospitalize करना चाहिए और blood transfusion करना चाहिए. And last point is continuous monitoring of the patient is essential. Then next point is snake bite. Snake bite is a many species of snakes are found and many of them are not poisonous but some are badly poisonous. Hence the snake bite should always be taken seriously. आपको पता है ये स्नैक बहुत तरह के होते हैं, या फिर पॉइजनस होते हैं या फिर नॉन पॉइजनस. पॉइजनस स्नैक लाइक वाइपर्स, कोबरा एट्सेट्रा एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स आर पाइथन, रफ ग्रीन स्नैक एट्सेट्रा. अगर वो बाइट किया तो आपको क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे. फर्स्ट ट्रीटमेंट इज अप्लाई अ लूज टॉर्निक्वेट to prevent the poison from being absorbed into the body through veins. Tourniquet should be placed above the bite to prevent the flow of blood towards the heart. आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, टॉर्निक्वेट. टॉर्निकेट यानी क्या, अ पीस ऑफ क्लॉथ. वो आपको क्या करना है, टाई करना है जहाँ पर पेशेंट को बाइट किया है स्नेक, टू प्रिवेंट द पॉइजन फ्रॉम बीइंग एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी थ्रू वेन्स. देन ऐसी जगह पर वो टाई करना है टूवर्ड्स द, यानी कि जहाँ आपका बाइट किया है स्नेक उसके ऊपर आपको टाई करना है. देन लूजन द टॉर्निक्वेट फॉर अ फ्यू सेकंड आफ्टर एवरी 15 मिनट्स फॉर सर्कुलेशन. आफ्टर एवरी 15 मिनट्स जो हमने टॉर्निक्वेट टाई किया है वो लूजन करना है फॉर द सर्कुलेशन. देन नेक्स्ट इमोबिलाइज द इंजर्ड पार्ट बिकॉज movement of activity of such a part may favor faster absorption of poison into systemic circulation. क्या करना है आपको, जहाँ पर आपको बाइट किया है वो पार्ट आपको मोबिलाइज नहीं करना है, इमोबिलाइज रखना है वो पार्ट, जेने कि अगर वो पॉइजन अगर एब्जॉर्ब हुआ ज़्यादातर तो आपको हार्मफुल हो सकता है, मे बी लीड्स टू डेथ. नेक्स्ट पॉइंट इज wash the wound with soap and water to remove any more poison on the skin surrounded the wound and from the wound itself. क्या करना है आपको, जहाँ पर स्नेक ने बाइट किया है वो आपको वाटर से या फिर सोप से वॉश करना है टू रिमूव द अदर पॉइजन. देन मेक क्रिस क्रॉस इंसिजन ओवर द बीटन एरिया एंड अलो टू ब्लीड. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जहाँ पर इंजर्ड हुआ है, जो जहाँ पर स्नेक ने बाइट किया है वहाँ पर क्रिस क्रॉस इंसिजन क्रिएट करना है और अलो टू ब्लीड. सक आउट द पॉइजन फ्रॉम अ वाउंड एंड स्प्लिट इट आउट. सक आउट द पॉइजन, क्या करना है, सक करना है वो पॉइजन एंड स्प्लिट इट आउट. इट इज़ नॉट हार्मफुल इवन इफ सॉलो बाय मिस्टेक. ये हार्मफुल नहीं है इफ़ इट इज़ सॉलन बाय मिस्टेक. बी श्योर दैट देयर are no ulcer in the mouth, but be sure which is a no ulcer in the mouth. Next point is if there is a insufficient breathing, try for artificial respiration. अगर विक्टिम को रेस्पिरेशन लेने में डिफ़िकल्टी जा रही है तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना चाहिए. देन इफ़ देयर इज़ अ साइन ऑफ फेलिंग हार्ट, देन हार्ट मसाज शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली. अगर आपको साइन मिला कि फेलिंग हार्ट बीट, उसकी पल्स रेट कम हो रही है तो आपको हार्ट मसाज भी स्टार्ट करना चाहिए. देन लास्ट इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एंटीविनिन गिवन अंडर अ मेडिकल सुपरविजन इन द बेस्ट रेमेडी. क्या करना है, इंट्रामस्कुलरली या फिर इंट्रावेनसली आपको पॉलीवैलेंट एंटीविनिन गिवन करना है पेशेंट को अंडर द मेडिकल सुपरविजन. ये हो गया हमारा स्नेक बाइट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रैक्चर. सो व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्चर. फ्रैक्चर मीन्स ब्रेकिंग और क्रैकिंग ऑफ बोन. इट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्चर. A fracture is a break in a continuity of bone. It may vary from a crack to a complete break.
मीन्स क्या होता है, means the structural break in the normal continuity of bone. It may vary from a crack to complete break. देन डिस्कस करेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर. फर्स्ट टाइप है क्लोज फ्रैक्चर, सेकंड पॉइंट है ओपन फ्रैक्चर, थर्ड है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर एंड फोर्थ है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर. तो फर्स्ट इज अ क्लोज फ्रैक्चर. सो व्हाट इज मीन बाय क्लोज फ्रैक्चर? सो here the bone is broken but the overlying skin is intact. क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन तो ब्रोक हो जाता है पर जो ऊपर की स्किन है वो ब्रोक नहीं होती, एज इट इज़ रहती है. उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोज फ्रैक्चर. देन नेक्स्ट है हमारा ओपन फ्रैक्चर. हियर the bone is broken and also there is a break in a skin or mucous membrane overlying the fracture. ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन तो फ्रैक्चर होता ही है बट जो ओवरलाइनिंग लेयर ऑफ स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी ब्रेक हो जाती है. इसको बोलते हैं हम ओपन फ्रैक्चर. देन थर्ड है हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर. हियर देयर इज an associated injury to some internal structure like a blood vessel, nerve, lungs, heart और liver. कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, जैसे कि ब्लड वेसल रप्चर हो जाना या फिर नर्व, लंग्स, हार्ट और लीवर, इसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी या फिर इंजुरी आ जाना, इसे बोलते हैं हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर. देन लास्ट है हमारा कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर. In this fracture, the bone is broken into a several fragments. In this fracture, bones ऐसे broke होते हैं in a several fragments. Then next है हमारा sign and symptoms of fractures. First sign है हमारा swelling and tenderness to touch. First sign है हमारा swelling. Then tenderness to touch. Then next sign है हमारा deformity. देन पेन कैसा भी हो सकता है, रैपिड भी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर टाइम में भी हो सकता है. देन एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ साइट ऑफ फ्रैक्चर. देन लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. ये हो गया हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर. देन हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर. तो फर्स्ट ट्रीटमेंट है हमारी डू नॉट मूव फ्रैक्चर पार्ट अनलेस नेसेसरी. जो हमारा पार्ट डैमेज हुआ है बॉडी का वो मूव नहीं करना चाहिए अगर नेसेसरी ना हो. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ देयर इज़ अ ब्लीडिंग वाउंड कवर इट विथ स्टेराइल ड्रेसिंग एंड ट्राई टू स्टॉप हीमोरेज. अगर आपके फ्रैक्चर में ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे ब्लीड को स्टॉप करने के लिए ड्रेसिंग करना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ फ्रैक्चर इज सस्पेक्टेड डू नॉट गिव द विक्टिम एनीथिंग बाय माउथ. अगर फ्रैक्चर हुआ है आपको लग रहा है ऐसा कि मुझे साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं फ्रैक्चर के, तो कोई भी माउथ इन ओरली कुछ भी आपको देना नहीं है, कोई भी फ्लूइड नहीं, कुछ भी देना नहीं है. देन नेक्स्ट, इफ़ द विक्टिम सफ़र फ्रॉम अ शॉक देन ट्रीटमेंट फॉर शॉक मे बी गिवन. नेक्स्ट पॉइंट इज टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल. देन हम मूव होंगे स्कल फ्रैक्चर. So what is mean by skull fracture? In this section we dealing with the concept of skull fracture, but the question arises, what is the mean by skull? So the skull nothing but the bone framework which is imploding in a brain. So something happened, that is a fracture. Now we discuss about the fracture, that framework in the brain. Before the issue the basic concept, that is the temporal bone, that is a teenage bone. अगर हमारी स्कल में अगर कुछ एक्सीडेंटली हमारा स्कल डैमेज हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम कि वहाँ पर फ्रैक्चर हो गया, ब्लीडिंग हो गया, तो हमारा स्कल डैमेज हो गया. तो फोर्स रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर, अगर फ्रैक्चर होने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, तो वो है 400 to 600 PSI. PSI मीन्स पाउंड स्क्वायर इंच. फोर्स रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर स्कल विथ इंटैक्ट स्काल्प लेयर इज 400 to 600 PSI. PSI मीन्स
pound square inch. Without scalp, it is a 25 psi. Psi means pound square inch. It is a just basic concept. Now we see the sign and symptoms of skull fracture. First sign is unconscious. Then next sign is bleeding from nose, mouth, ears and paralysis of head muscles including eyelids and tongue. देन स्कल फ्रैक्चर का हम ट्रीटमेंट देखेंगे. फर्स्ट ट्रीटमेंट है डू नॉट मूव विक्टिम अनलेस नेसेसरी. अगर नेसेसरी ना हो तो विक्टिम को मूव नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ फेस कलर इज नॉर्मल और फ्लश रेडनिंग देन राइज हिज हेड एंड शोल्डर स्लाइटली. नेक्स्ट पॉइंट इज if face color is pale then slightly elevate his legs and trunk about the level of head. Then next loosen the clothing around neck, chest and trunk. Okay, then if scalp is bleeding apply sterile dressing with a moderate pressure. अगर स्काल्प में ब्लीड हो रहा है तो वो आपको क्या करना है, ड्रेसिंग करना है विथ मॉडरेट प्रेशर. देन डू नॉट गिव एनीथिंग बाय माउथ. माउथ से कुछ भी देना नहीं है विक्टिम को. देन लास्ट गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ़ रिक्वायर्ड. आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है इफ़ रिक्वायर्ड. देन नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेक एंड स्पाइन फ्रैक्चर्स. The spinal cord is a link of nervous tissue between the brain and rest of body. आप सबको पता है spinal cord is a link between the brain and rest of the body. It passes down through the vertebral column. Injury to the neck and spine may cause a severe pain in the neck and back region and paralysis of body part below the injured spot. अगर नेक एंड स्पाइन फ्रैक्चर हुआ तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या होनी चाहिए ये हम देखेंगे. नेक्स्ट है डू नॉट मूव द विक्टिम अंटिल एब्सोल्युटली नेसेसरी. नेक्स्ट इफ ही इज़ नॉट बी मूव यूज़ फर्म सपोर्ट फॉर मूविंग. अगर आपको मूव ही करना है, फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट मूव. अगर नेसेसरी नहीं हुआ तो अगर आपको नेसेसरी है मूव के लिए, मूव करना है उसे, तो उसके लिए हमें सपोर्ट फॉर मूविंग देना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट परमिट द विक्टिम टू रोटेट हिज हेड while moving. Take the help of another person to hold the victim's head on a line with the spine. क्या करना है, अगर मूव करना है हेड को विक्टिम के तो अदर पर्सन क्या करेगा, उसको हेड ऑफ विक्टिम ऑन अ लाइन विथ स्पाइन. Arrange for moving the victims to hospital and finally arrange the victims for move for the hospital. Then next है हमारा chest fracture. Thoracic cage protect heart and lungs. आप सबको पता है thoracic cage हमको प्रोटेक्ट करता है हार्ट एंड लंग्स को. Then if a broken rib should pierce a lungs, bright red frothing blood may be coughed out. A penetrating wound could also produce a bleeding from mouth. इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे. If broken rib is suspected, gently support the arm on the injured side in the sling. The next point, if there is a open wound, sucking the air, cover it immediately to keep the air out. Okay, next lay the victim down and incline towards the injured side. Next arrange for a quick transfer to hospital. Then next है हमारा burn and scale. So what is mean by burn? The burn occur due to the light, heat, chemicals, electricity, irradiation which is a occurs of burns. Then these are the injured caused due to the contact with or too close to heat and strong chemicals. Burn are injured caused by open fire, chemicals, electricity, etc. While scalp are injured caused by the moist heat. Scalp means क्या होता है, caused by moist heat like a steam and boiling liquid.
Both burns and scald cause similar damage to body tissues and hence the first aid treatment is similar. Then the treatment of burn and scald. First point is fluid the injured part with plenty of cold water or any other non-inflammable fluid. If possible, immerse the affected part of body in a cold water or apply clean cloth soaked in a cold water to the affected part. फर्स्टली हमें क्या करना है, जहाँ पर बर्न हुआ है, स्काल्ड हुआ है, वहाँ पर कोल्ड वाटर अप्लाई करना है, या फिर ऐसा इफ़ अगर पॉसिबल हुआ तो इमर्स पार्ट इज अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी इन अ कोल्ड वाटर और अप्लाई क्लीन क्लॉथ सोक इन अ कोल्ड वाटर टू द अफेक्टेड पार्ट. Then if the water or non-inflammable fluid are not available, then smoothen the flames by covering them with a blanket, rug or coat. अगर वहाँ पर आपको वाटर या फिर नॉन इन्फ्लामेबल फ्लूइड नहीं मिला तो आपको क्या करना है, कवर देम विथ अ ब्लैंकेट, रग और कोट. देन डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लॉथिंग फ्रॉम द ब्लंट एरिया, कट अराउंड इट. आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डू नॉट ट्राई टू रिमूव क्लॉथिंग. जो विक्टिम है उसकी जो क्लॉथिंग है वो रिमूव नहीं करनी है, कट करनी है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कीप द विक्टिम इन अ लाई डाउन पोजिशन टू अवॉइड शॉक. विक्टिम को लाई डाउन पोजिशन में रखना है टू अवॉइड अ शॉक. Then next point is apply dry dressing over a burn area. If burning is extensive, wrap the victim in a clean cloth and move to the hospital. क्या करना है, अप्लाई ड्राई ड्रेसिंग. हम जनरली वाउंड और इंजरी पर क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, तो ड्रेसिंग में एंटीसेप्टिक लिक्विड हम यूज़ करते हैं, बट इन बर्न में हम ड्राई ड्रेसिंग यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर सीवियर ये हुआ, उसको ज़्यादा बर्न हुआ तो डायरेक्टली हमें हॉस्पिटलाइज करना है. देन डू नॉट डिस्टर्ब द ब्लिस्टर इन एनी वे. डू नॉट यूज़ एब्सॉर्बेंट कॉटन, ऑयली सब्सटेंसेस और एंटीसेप्टिक्स. आपको याद रखना है कि डू नॉट यूज़ एब्सॉर्बेंट कॉटन और ऑयली सब्सटेंसेस और एंटीसेप्टिक्स. गिव विक्टिम्स फ्लूइड इफ़ ही इज़ अ कॉन्शियस एंड कैन सॉलो. अगर विक्टिम कॉन्शियस हुआ तो गिव हिम अ फ्लूइड, यानी कि वाटर या कुछ भी आप दे सकते हो. फॉर द बर्न बाय केमिकल्स, bath affected area immediately with water until all the chemicals has been washed away. अगर बर्न केमिकल से हुआ तो वो पार्ट आपको बात करना है सोप से या फिर वाटर से. देन फॉर बर्न्स अफेक्टिंग आई, होल्ड आई ओपन एंड फ्लश जेंटली विथ वाटर, कवर विथ स्टेराइल ड्रेसिंग. फॉर इलेक्ट्रिक बल्स, अगर बर्न हुआ है, अफेक्टेड आई अगर आपकी अफेक्ट हुई है तो क्या करना है, होल्ड आई ओपन एंड ब्लश जेंटली विथ वाटर, कवर विथ स्टेराइल ड्रेसिंग. अगर आपको इलेक्ट्रिक बर्न से कुछ बर्न हुआ है, इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है फ्रॉम द लाइटनिंग, अप्लाई आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ ब्रीथिंग हैज स्टॉप. ये हो गई हमारी ट्रीटमेंट ऑफ बर्न एंड स्केल. देन नेक्स्ट है हमारा sunstroke. Sunstroke means it is a injury caused by sun heat. This occurs mainly to elder person. Sunstroke यानी क्या, जो हम बाहर जाते हैं इन समर में तो जो रेडिश स्किन होती है, उसकी सिम्टम्स क्या, रेडिश स्किन होती है. तो ये क्या हो गया, सन हीट की वजह से जो रेडिश स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, सनस्ट्रोक. ये मोस्टली एल्डर पर्सन को ही होता है. दोज हु वियर अ हैट एंड कूल क्लॉथिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड हु ड्रिंक प्लेंटली ऑफ वाटर मे नॉट हैव दिस प्रॉब्लम. हाउएवर, इन पर्सन who are exposed to hot climate or other condition which include copious perspiration, there is a loss of chloride that needs to be compensated. अगर आपको ऐसी कंडीशन मिली, अगर लॉस ऑफ क्लोराइड हुआ तो क्या करना चाहिए, वो ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर मिलेगी. ट्रांसपोर्ट द विक्टिम टू द इंडोर इमीजिएटली. विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए इंडोर द इमीजिएटली. रिमूव हिज क्लॉथ एंड cool the body surface by sponging with water.
रिमूव हिज क्लॉथ, आप उस पेशेंट के क्लॉथ निकाल कर आप सरफेस पर स्पॉन्जिंग विथ वाटर से अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ द पेशेंट आर कॉन्शियस गिव हिम सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर पेशेंट कॉन्शियस रहा तो उसको सॉल्ट सॉल्यूशन भी देना है। नेक्स्ट पॉइंट, अरेंज फॉर ट्रांसफर टू हॉस्पिटल, एंड फाइनली उसको अगर सीवियर कंडीशन हुई तो उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइजनिंग। सो व्हाट इज़ द पॉइजनिंग? पॉइजनिंग के टू पार्ट्स हैं, यानी कि टू कॉमन कॉजेस है। फर्स्ट है एक्सीडेंटल। इन एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस स्पेशली बाय चिल्ड्रन, मीन्स इसमें एक्सीडेंटल पॉइजनस में क्या होता है, हजार्डस सब्सटेंसेस इनटेक हो जाता है, इंजेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में चिल्ड्रंस रहे तो हमने कोई भी यानी कि ट्रंक्विलाइज़र या फिर सीडेटिव हिप्नोटिक्स की मेडिसिन वहाँ पर रख दी और चिल्ड्रन ने इनटेक कर ली, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। एंड नेक्स्ट है हमारा इंटेंशनल पॉइजनिंग, दैट इज़ द इंजेक्शन टू कमिट अ सुसाइड। जो सुसाइड के लिए कमिट करते हैं वो इसमें आता है इंटेंशनल पॉइजनिंग में। इफ़ ड्यू टू प्रिकॉशन आर टेकन while storing such substances, then incidence of accidental poisoning may be greatly reduced. Of such precautions include, अगर आपको accidentally poisoning नहीं होना है तो precautions दिए, तो first precaution is always keep medicines like tranquilizer, sedative, antihistaminics, expectorant, aspirin, etc. out of reach of the children, preferably in a lock and key arrangement. फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है, जैसे कि हार्मफुल मेडिसिन है तो हमें वो प्रिफरेबली लॉक एंड की अरेंजमेंट में ही रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रिकॉशन है टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस व्हाइल स्टोरिंग एंड हैंडलिंग कॉमन पॉइजन सच एज पेस्टिसाइड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोप्स, डिटर्जेंट, डिसइंफेक्टेंट, गैसेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट प्रिकॉशन है केयरफुली डिस्पोज ऑफ ऑल पोटेंशियल पॉइजन्स। केयरफुली डिस्पोज करना चाहिए, जो पोटेंशियल पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं वो केयरफुली डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिकॉशन से रिमूव पॉइजनस प्लांट फ्रॉम द प्रीमाइसिस। रिमूव करना है आपको, अगर पॉइजनस प्लांट आपके प्रीमाइसिस में है तो आपको रिमूव करना है। देन उसकी ट्रीटमेंट, the ingestion poisons available in the stomach should be diluted by administration of milk or water or can be neutralized by administrating specific antidote if available. फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, अगर पॉइजन आपके बॉडी में चला गया तो उसको डाइल्यूट करना चाहिए। डाइल्यूट किससे करोगे आप, मिल्क एंड वाटर से, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो एंटीडोट। देन हाउएवर इफ इन दिस केस the first aider should be sure about the poison ingestion and specific antidote for it. Immediately emptying of stomach is also indicated to remove the poison from stomach. Expect those involving causative agent and petroleum products such as kerosene. Then next, call for a doctor immediately and arrange for a quick transfer to hospital. Okay, next, save poisonous substances or its container for information to doctor. Next, if skin contact has occurred, wash immediately with plenty of water and ordinary soap. Okay, if the victim is conscious, take information from him about what has been ingestion, when and how much. अगर विक्टिम कॉन्शियस में रहा तो उसको पूछना चाहिए कि आपने क्या लिया या फिर कितनी क्वांटिटी में लिया, वो उसको पूछना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ विक्टिम वोमिट, सेव द सैंपल ऑफ वोमिट फॉर एग्जामिनेशन। इफ़ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस, चेक हिज ब्रीथिंग एंड इफ़ नेसेसरी गिव हिज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। अगर विक्टिम अनकॉन्शियस हुआ, उसकी रेस्पिरेशन कम हुई तो क्या करना है, हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी है। लास्ट पॉइंट इज वॉच फॉर डेवलपमेंट ऑफ शॉक
and if necessary give treatment of for a shock and finally it is a hospitalize. ये हो गया हमारा चैप्टर फर्स्ट एडर. थैंक यू.